Hello, good morning, students. So, today's topic for discussion is circular motion. So, before starting, I would like to discuss something with you. Uh, the purpose of this channel is to cater the gap between the Maharashtra State Board syllabus and the syllabus which is prescribed for JEE and NEET by CBSE. So, I would suggest those students who are preparing for JEE and NEET and are in 12th standard in Maharashtra State Board. This channel will be benefiting you in very much broad way. Like it will not only help you to score good marks in your board exams, but also it will help you to develop the concept up to JEE and NEET level. All right, so if you are new here, I would request you to subscribe my channel and please share a mouth of word with your friends so that they will be also get benefited from this source. So the purpose here is quite simple and clear. There is a syllabus gap between the Maharashtra State Board syllabus and the syllabus for JEE and NEET. I am trying here my best to cater that gap and provide you the the concept which will not only help you score in your class 12, but also it will help you to score in JEE and NEET. All right, so let's start with the topic. So today's topic is the very first chapter of your Maharashtra State Board in physics, that is rotational dynamics. Basically what they did is till last year the first chapter was uniform circular motion or circular motion, but now what they did, they clubbed two chapters, that is circular motion and rotational motion, that we also called as rigid body dynamics. तो ये दो चैप्टर को क्लब करके they had made a single chapter, that is rotational dynamics. So today we are starting with the circular motion part, and we will try to cover it as much as possible, and then we will go for rotational dynamics or the rotational motion part. All right, so let's start with the circular motion part. So what exactly is circular motion? Any particle or any body moving in a circle can be termed as circular motion. All right, अगर कोई भी पार्टिकल एक सर्कल में घूम रहा है तो मैं उसे इजीली बोल सकता हूँ कि वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. ठीक है, अब इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं कि सर्कुलर मोशन में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इसमें क्या क्या टर्म्स है दैट वी हैव टू कंसिडर वाइल टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ सर्कुलर पाथ. ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हम ग्रेजुअली देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हम इसमें यूज़ करेंगे. तो बिफोर दैट सर्कुलर मोशन का इंट्रोडक्शन, बेसिक डेफिनेशन तो यही है. कोई भी टेक्स्ट बुक में आप देखोगे एनी पार्टिकल और एनी बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ कैन बी टर्म्ड एज सर्कुलर मोशन. ऑलराइट, इसका एग्जांपल हम थोड़ा बहुत ले सकते हैं कि अगर इफ अ पर्सन इज वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड, दैट टू कैन बी टर्म्ड एज अ सर्कुलर मोशन. हाउ? if I consider if I am looking that man from far away from from the surface, or you can say the earth surface is curved. All right, the earth surface is, suppose this is our earth and a person is walking on this surface. If I see from my position, I can say this man is also performing a circular motion. Why? Because if I analyze his motion by standing on the ground, I may not be able to say that the surface he is walking on is a circular path. But if I go away and check it out, then I can definitely say this person is walking on a curved path. That is, this person is performing a circular motion. This example can be a bit confusing, so let's take another example. I hope everyone, you have used or sat in the giant wheel. मेले में जब हम जाइंट व्हील में बैठते हैं तो वो क्या है, वो भी एक सर्कुलर मोशन है. दैट्स अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वो जाइंट व्हील इस तरीके से वर्टिकल प्लेन में घूमता है, तो दैट कम्स अंडर वर्टिकल सर्कुलर मोशन. वो हम लास्ट में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन के टॉपिक में.
और हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, दैट इज सिंपल एग्जांपल आई कैन गिव इज ऑफ मैरी गो राउंड। बचपन में हम सब बैठे होंगे, उसके अंदर गोल गोल घूमता है वो, तो वो गोल घूमना क्या है, वो एक सर्कुलर मोशन है। कार्स भी बहुत से टाइम पे टर्न लेती हैं, या मैं एक स्टोन को टाई कर दूँ एक स्ट्रिंग से और उसको रोटेट करूं, तो दैट विल ऑल्सो परफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो बेसिक सर्कुलर मोशन क्या है, द मोशन इन विच पार्टिकल इज फॉलोइंग अ सर्कुलर पाथ, सिंपल, ठीक है। तो फिर रोटेशनल मोशन क्या होगा, रोटेशनल मोशन वो चीज़ है कि रोटेशनल मोशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी सर्कुलर मोशन ऑल टुगेदर। लाइक एक पार्टिकल है, उसके अंदर बहुत एक बॉडी है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होंगे। अगर वो बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, अगर वो बॉडी घूम रही है तो उसके सारे पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे होंगे अबाउट अ फिक्स एक्सिस, ठीक है। तो वो रोटेशनल पार्ट है, दैट विल कवर अंडर रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन का बेसिक डेफिनेशन होप अपने को समझ में आ गया है, ठीक है। अब छोटी छोटी सी बातें करते हैं सर्कुलर मोशन के रिलेटेड, ठीक। अब इसमें लेट से वो पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, ये रोटेट कर रहा है, लेट्स से इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। आई एम टॉकिंग इन हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात हो रही है फिगर के लिए यहाँ पे, ठीक। अब वो लेट्स से वो रोटेट कर रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब वो रोटेट करते में इसमें जो चीज़ें अटैच होंगी दैट वी शुड कीप इन माइंड और वी शुड कंसिडर, वो सारी चीज़ें क्या हैं। जैसे कि हम एक लीनियर वेलोसिटी या लीनियर मोशन के टाइम पे कंसिडर करते हैं, व्हाट आर क्या क्या टर्म यूज़ करते हैं हम, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो सारे टर्म भी हम यहाँ पे एसोसिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि ये भी एक तरीके का मोशन है, दो इज़ अ सर्कुलर मोशन, लेकिन इसके लिए भी सारे वेरिएबल हमें डिफाइन करने होंगे, एक अलग तरीके से उसको डिफाइन करेंगे हम, ठीक है। तो अभी बेसिकली हो क्या रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन लेट से परफॉर्म कर रहा है। वो किस तरीके का सर्कुलर मोशन है आई डोंट नो, बस वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे लेट सपोज करो इस बॉडी का लेट से मास है कुछ m, छोटा m, और इसको मैंने एक वेलोसिटी दे दी v, ठीक है। अब इस वेलोसिटी जैसी मैंने इसको दी तो ये सर्कुलर मोशन घूमने लगा। इनिशियली उसको वेलोसिटी कुछ मिली है v, जब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एट एवरी पॉइंट, अगर लेट से पार्टिकल थोड़े टाइम बाद यहाँ पे आता है घूमते हुए, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन ये हो जाएगा, थोड़ी देर बाद यहाँ आया, इसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन टेंजेंशियल, मतलब हर पॉइंट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो इस पार्टिकल का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, बिकॉज ऑफ विच इट इज़ पॉसिबल फॉर दिस पार्टिकल टू बी इन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। अगर वो डायरेक्शन ना चेंज करे तो इट विल गो स्ट्रेट, ये टेंजेंशियली स्ट्रेट चला जाएगा एंड इट विल बी नो मोर इन अ सर्कुलर पाथ, तो हम उसको सर्कुलर मोशन बोल ही नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमेशा उस पार्टिकल को अपना डायरेक्शन चेंज करना होगा जब भी वो सर्कुलर मोशन में रहेगा। ये बेसिक सी बात थी, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसके वेरिएबल्स जो है वो डिफाइन कर लेते हैं कि वेरिएबल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम लीनियर में डिफाइन करते थे, किस में डिफाइन करते थे, लीनियर। पहले मैं यहाँ लिस्ट डाउन कर लेता हूँ फॉर लीनियर मोशन, वेरिएबल्स फॉर लीनियर मोशन लिखते हैं टू बी प्रिसाइज, वेरिएबल्स और टर्म्स। क्या क्या हम डिफाइन करते थे किसके लिए, लीनियर मोशन के लिए, क्या क्या थे वो। सबसे पहले हमने देखा था डिस्टेंस, ठीक है। उससे भी पहले हमने एक चीज़ देखी थी, उसको यहाँ नोट कर लेते हैं, पोजीशन, डिस्टेंस, थर्ड इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। इसके बाद हम देखते थे वेलोसिटी, फिर वी हैव सीन स्पीड, फिर इसके बाद हमने देखा एक्सेलरेशन, ठीक है। ये सारे जो भी टर्म्स थे वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन क्लास 11th, और ये सारे टर्म किससे एसोसिएटेड है, लीनियर मोशन से। ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिफाइन की थी, ठीक है। अब इसके बाद हम बात कर रहे हैं सर्कुलर मोशन की, तो डेफिनेटली देयर शुड बी सम वेरिएबल डिफाइंड फॉर सर्कुलर मोशन एज वेल। अगर हम वो चीज़ नहीं डिफाइन करेंगे तो वी कैन नॉट एनालाइज द मोशन प्रॉपरली, ठीक है ना। तो उसके बाद ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो है हम इसे किसके लिए डिफाइन कर देंगे, सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सर्कुलर मोशन में क्या क्या होना चाहिए, लेट्स से यहाँ पे पोजीशन था, ठीक है।
पोजीशन वेक्टर क्या होता था? पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का, किसी बॉडी का पोजीशन बताता था विद रिस्पेक्ट टू अ फिक्स पॉइंट, उसे हम पोजीशन वेक्टर बोलते थे। ठीक है, लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करते हैं, ठीक है, ये ओरिजिन है अपना 0,0 पे, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ठीक है, ये एक पार्टिकल है P1, इसकी दूरी है लेट्स से R1, एक पार्टिकल और है P2, इसकी दूरी है R2, ठीक है। अब ये जो R1 है, R1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ P, ठीक है, P1 का पोजीशन वेक्टर है R1, P2 का पोजीशन वेक्टर है R2, ठीक है। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि P2 कहाँ है P1 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो इसमें बेसिकली क्या करेंगे हम, R2 माइनस R1 कर देंगे, तो मुझे पोजीशन ऑफ P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1 मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पोजीशन वेक्टर हो जाएगा किसका, P2 विथ रिस्पेक्ट टू P1। इफ आई एम डिफाइनिंग इट फ्रॉम ओरिजिन, तो P1 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R1 एंड P2 का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज R2, ठीक। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है अपने को। सिमिलरली यहाँ पे हम पोजीशन वेक्टर डिफाइन करते थे, अब सर्कुलर मोशन में वी विल डिफाइन रेडियस वेक्टर। क्यों रेडियस वेक्टर? क्योंकि यहाँ पे हमेशा जो भी पार्टिकल का पोजीशन होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर हम कैलकुलेट करेंगे। लेट्स से ये सेंटर है हमारा, ठीक है। अब लेट्स से पार्टिकल यहाँ पे है, तो ये अपना R होगा और ये हमेशा R ही होगा, R के अलावा तो रेडियस चेंज नहीं हो सकता अगर वो सर्कुलर पाथ में है। तो थोड़ी देर बाद वो यहाँ आ गया तो ये रेडियस वेक्टर हो गया, वो यहाँ आ गया तो ये दिस विल बी द रेडियस वेक्टर, ठीक है ना। तो ये बात अपने को समझ में आ रही है कि ये सारी चीज़ हम पोजीशन वेक्टर की तरह हम एक रेडियस वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो रेडियस वेक्टर या बेसिकली मैं उसको बोल सकता हूँ यहाँ पे, इसको पोजीशन वेक्टर भी हम बोल सकते हैं। टू बी प्रिसाइज इसको हम रेडियस वेक्टर इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटिंग अ रेडियस ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ अ सर्कल इसीलिए इसका नाम पड़ा रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर इज नथिंग बट द वेक्टर विच इज showing or which is pointing the position of a particle performing circular motion। ऑलराइट, बेसिक डेफिनेशन है इसकी रेडियस वेक्टर की। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट टर्म डिफाइन किया रेडियस वेक्टर, तो इसको भी यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट टर्म था हमारा रेडियस वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हम उसको वेरिएबल बोलते थे ना, यहाँ पे हम वेरिएबल बोल रहे थे। यहाँ पे सर्कुलर मोशन के लिए वी विल कॉल इट एज एंगुलर वेरिएबल। क्या बोलेंगे हम इसे? एंगुलर वेरिएबल्स। इसे हम एंगुलर वेरिएबल बोल के डिफाइन करेंगे, जहाँ से हमें डिफरेंशिएट करने में आसानी हो। व्हेन द टर्म वेरिएबल कम्स हमारे दिमाग में लीनियर मोशन आना चाहिए। व्हेन द टर्म्स एंगुलर वेरिएबल कम्स हमारे दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि समवन इज टॉकिंग अबाउट सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया रेडियस वेक्टर। होप रेडियस वेक्टर अपने को क्लियर हो गया। सेकेंड जो पार्ट था यहाँ पे था डिस्टेंस। डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो एक अपना मैग्नीट्यूड वाला टर्म था, ठीक है। डिस्टेंस इज एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड, या एक्चुअल पाथ कितना कवर किया उसने, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे अपने लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्टिकल का आर्क ऑफ अ सर्कल। डिस्टेंस क्या होगा अपने लिए? आर्क ऑफ अ सर्कल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसको, आर्क ऑफ अ सर्कल या सर्कुलर पाथ भी बोल सकते हैं इसमें, वन एंड द सेम, ठीक है। आर्क ऑफ अ सर्कल ये हो गया अपना डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, डिस्टेंस है ये, ठीक है, एनालॉगस टू डिस्टेंस, ठीक है। थर्ड जो है डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे टर्म आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर मीन्स लेट्स से वो पार्टिकल फर्स्ट यहाँ पे था, किसी टाइम t इक्वल्स टू 0 पे पार्टिकल वॉज हियर, ठीक है। लेट्स से पार्टिकल था यहाँ पे, कुछ टाइम बाद पार्टिकल मूव होके इस तरफ आ गया, पार्टिकल इज हियर, ठीक है। तो उसने कुछ एंगल ट्रेस किया है थीटा। एंगल कितना ट्रेस किया है? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगल ट्रेस्ड बाय अ पार्टिकल इन अ सर्कुलर मोशन कैन बी टर्म्ड एज और इज टर्म्ड एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। होप ये बात भी समझ में आ गई अपने को कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। तो अगर उसने एक एंगल ट्रेस किया है तो डेफिनेटली उसका यूनिट क्या होना चाहिए? रेडियन, ठीक है। और ऑलवेज रिमेंबर इसको हम रेडियन में लेते हैं। किस में लेते हैं? रेडियन, ठीक है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज टर्म्ड अंडर रेडियन और थीटा है ये। अगर एक पार्टिकल यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट हो गया, अपना पोजीशन उसने चेंज किया सर्कुलर पाथ में, तो द एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर, एंगल ट्रेस बाय रेडियस वेक्टर, देखो ये रेडियस वेक्टर ने ही एंगल ट्रेस किया है,
ठीक है, दैट कैन बी टर्म एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है वेलोसिटी, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए आई कैन से रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एंगुलर वेलोसिटी, ऑलराइट, क्योंकि वहाँ पे हम वेलोसिटी को बोलते थे डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फोर्थ इज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। इसका यूनिट आ जाएगा रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। इसको हम डिनोट करते हैं ओमेगा से, किससे, ओमेगा से। इसको हम डिनोट करते थे थीटा से, ऑलराइट। इसका था रेडियन, इसका हो गया रेडियन पर सेकेंड, और इसको आई कैन राइट ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी। अब ये कैसा है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। डी थीटा बाई डी टी, बिकॉज एंगुलर वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आई कैन से इट इज डी थीटा बाई डी टी। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो लेट से पार्टिकल t0 पे, ठीक है, यहाँ पे इस पोजीशन पे था। अब थोड़ा टाइम लेट से dt यहाँ पे t0 था, dt टाइम बाद, ठीक है, dt टाइम बाद पार्टिकल ने लेट से ट्रेस किया डी थीटा एंगल। कितना ट्रेस किया, बहुत छोटा सा एंगल ट्रेस किया उसने, डी थीटा एंगल। द वर्ड इज इनफाइनेटसिमल, दैट इज वेरी मच स्मॉल डिस्टेंस। वेरी मच स्मॉल डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि आई कैन ऑलमोस्ट कंसिडर दिस टू बी एज अ स्ट्रेट पाथ। इसको मैं क्या कंसिडर कर सकता हूँ, स्ट्रेट पाथ, क्योंकि बहुत छोटा सा टाइम में उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। यहाँ पे ऑल्दो हमने थोड़ा ज़्यादा गैप बता दिया, लेकिन लेट से वो डिस्टेंस था डी थीटा यहाँ पे फ्रॉम t टू t प्लस डी टी, ये टाइम में, ठीक है। यहाँ पे कोई टाइम t पे था, फिर वो डी टी टाइम में यहाँ तक उसने ट्रेस किया पाथ, ठीक। तो एक्चुअली में ये dt व्हेन dt टेंड्स टू जीरो, व्हेन dt टेंड्स टू जीरो ऑलमोस्ट, मतलब टाइम इज नेग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट टाइम चेंज ही नहीं हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नाउ। जहाँ पे टर्म dt आ गया, आई एम डेफिनेटली टॉकिंग अबाउट इंस्टेंटेनियस वर्ड। अगर ये dt नहीं होता तो इट वुड बी एवरेज, ठीक है, एवरेज की बात कर रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये जो टर्म है ना, ये जो टर्म है, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो एवरेज के टर्म्स में हम कैसे लिखेंगे, ओमेगा इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी विद इन नेग्लिजिबल चेंज इन टाइम। कितना एंगल उसने ट्रेस किया, दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, और टू बी प्रिसाइज एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस क्या होगी, जैसे ही मैंने लिमिट लगा दिया एवरेज पे, तो इट कम्स आउट टू बी डी टी बाय डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी, ठीक। तो डी थीटा बाय डी टी इज नथिंग बट इट्स अ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब उस इंस्टेंट पे उसकी वेलोसिटी पार्टिकल की कितनी थी, दैट इज डी थीटा बाय डी टी, ऑलराइट। तो होप एंगुलर वेलोसिटी भी अपने को समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी क्या है। लेट्स से अब हम इसको एक और एक चीज़ ले लेते हैं यहाँ पे, फिफ्थ वाला। फिफ्थ दे आर टॉकिंग अबाउट स्पीड। स्पीड यहाँ पे कोई टर्म अपने लिए मीन्स स्पीड जो है ना, वो वेलोसिटी का ही एक पार्ट है। बेसिकली इफ़ आई डिफाइन वेलोसिटी, या मैं वेलोसिटी की बात करूं, तो वेलोसिटी वी ऑल नो इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी है मीन्स उसके पास दो चीज़ें होनी कंपलसरी है। द कंडीशन फॉर इट टू बी अ वेक्टर इज, इसके बाद एक तो स्पीड हो, या उसको हम मैग्नीट्यूड बोलते हैं। बेस्ट वेक्टर होने की दो चीज़ें, एक उसके पास होगा मैग्नीट्यूड, एक होगा उसके पास डायरेक्शन। ये दो चीज़ अगर उसके पास होगी तो आई कैन से दिस क्वांटिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड जो होता है ना वेलोसिटी का, दैट वी टर्म एज स्पीड, यानी कि वेलोसिटी का एक पार्ट है वो स्पीड, ठीक। तो ये नथिंग डिफरेंट, बस इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर वेन एवर इट कम्स लाइक जस्ट ओमेगा, तो ये ओमेगा क्या होगी, एंगुलर स्पीड होगी। क्या होगी इसकी, एंगुलर स्पीड, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू, या कितना एंगल उसने ट्रेस किया, यानी कि आर्क की बात करेंगे अब हम। अगर मैं एंगुलर स्पीड की बात कर रहा हूँ तो मैं उसके लिए आर्क की बात करूँगा, ठीक है, कि उसने कितना आर्क या एक्चुअल में डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया, ठीक है। और अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट एंगुलर वेलोसिटी, तो उसने एंगल कितना ट्रेस किया, ठीक है। एंगुलर स्पीड है तो आर्क, और अगर एंगुलर वेलोसिटी है तो उसने एंगल कितना ट्रेस किया। ऑलराइट, होप ये समझ में आ गया रहेगा अपने को। ये हो गया।
और अगर मैं ओमेगा के ऊपर जस्ट आई पुट अ बार, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी बन गया एंड इट रिप्रेजेंट अ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर स्पीड मतलब ओमेगा, एंगुलर ओमेगा बार इज एंगुलर वेलोसिटी। ठीक, फिफ्थ टर्म इज एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो एक्सेलरेशन का क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगा। और एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, तो इसको भी लिस्ट कर लेते हैं यहाँ पे। एंगुलर एक्सेलरेशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से। इसका यूनिट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता था, यहाँ पे रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होगा। ठीक है, अल्फा से डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन में कैसे डिफाइन करते थे, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सिमिलरली वी कैन राइट हियर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आई कैन राइट अल्फा एज डी ओमेगा बाई डी टी। सिंपल, डी ओमेगा बाई डी टी। ओमेगा को मैं रिप्लेस भी कर सकता हूँ डी थीटा बाई डी टी से। ओमेगा को रिप्लेस करूँगा डी थीटा बाई डी टी से, इट कम्स आउट टू बी डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, कोई इशू नहीं है। यहाँ तक होप अपने को बेसिक एंगुलर वेरिएबल्स के टर्म क्लियर हो गए। ठीक है, इसमें एक और एक चीज़, एंगुलर वेलोसिटी की जब मैं बात करूँगा ना, तो इसकी डायरेक्शन में किस तरीके से दूंगा, और वहाँ पे तो चलो वी कैन डिफाइन द कोऑर्डिनेट, ईस्ट है वेस्ट है, फॉर लीनियर वेरिएबल आई एम टॉकिंग, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ डिफाइन हो जाता था। लेकिन सर्कल के केस में क्या, मैं इसको कैसे डिफाइन करूँ, तो इसका जो डायरेक्शन देने का जो तरीका है वो ये है कि आई डिफाइन एन एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर क्या होता है, एक्सियल वेक्टर टुवर्ड्स एक्सिस के अलोंग एक्ट करता है। तो इसमें सिर्फ दो ही पॉसिबल आई कैन डिफाइन सर्कुलर मोशन में, आइदर एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो यूजिंग राइट हैंड थंब रूल, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल मूविंग, तो जो फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ पार्टिकल इन विच इट इज मूविंग, और जो थंब जो उसका डायरेक्शन देगा दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ इट्स, उसका डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, तो यानी कि अपने केस में अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है इट कम्स आउट टू बी आउटवर्ड। ठीक है, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो, और क्लॉकवाइज है तो इट विल कम डाउनवर्ड्स। ठीक है, तो उसको भी यहाँ पे जस्ट नोट कर लेते हैं। यहाँ पे इफ अ पार्टिकल इज एंटी क्लॉकवाइज से मूव कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी से, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर या उसका जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा ओमेगा बार ऊपर की तरफ। ठीक है, और अगर पार्टिकल, और इफ से पार्टिकल इज मूविंग इन क्लॉकवाइज सेंस, तो उसका जो डायरेक्शन आएगा वो आएगा नीचे की तरफ। तो ये बेसिक चीजें हैं किसके बारे में, डायरेक्शन के बारे में। किसके डायरेक्शन के बारे में, एंगुलर वेलोसिटी के डायरेक्शन में। तो इसको हम बोलते हैं एक्सियल वेक्टर है। ये एक्सियल वेक्टर बिकॉज इसका जो डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है वो एक्सियली रिप्रेजेंट कर रहा है अबाउट द सर्कल, अबाउट द सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, होप यहाँ तक क्लियर हो गया रहेगा अपने को। सिमिलरली आई कैन से एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, तो सेम डायग्राम आएगा यहाँ पे, जस्ट अल्फा आएगा। ठीक है, इफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, इफ द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, लेट से अगर कोई पार्टिकल है वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही घूम रहा है विथ ओमेगा। ठीक है, तो इसका डायरेक्शन तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन तो ऊपर ही आने वाला है यहाँ की तरह, तो एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इसी तरफ आएगा। एंगुलर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी इसी तरफ आएगा। क्यों, बिकॉज द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन को भी होना पड़ेगा बिकॉज इट इज द एक्सेलरेटिंग वाला केस। अगर पार्टिकल डिसेलरेट हो रहा है, मीन्स उसका एक्सेलरेशन कम होते जा रहा है, तो डेफिनेटली उसका एक्सेलरेशन जो होगा वो होगा अपोजिट सेंस में। लेट से अगर वो पार्टिकल ओमेगा से मूव हो रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन अपवर्ड है। ऑलराइट, ये है एक्सेलरेटिंग वाला केस, जस्ट कीप इट इन माइंड, ये एक्सेलरेटिंग है तो इसका अल्फा का डायरेक्शन नीचे होगा। ये है डिसेलरेटिंग केस। ठीक है, यहाँ पे डिसेलरेशन हो रहा है, एक्चुअली इट्स नॉट विजिबल, तो मैं इसको थोड़ा साइड में लिख देता हूँ, या मैं फिगर थोड़ा यहाँ पे बना लेते हैं। इसको फिगर यहाँ बना लेते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन का। ये पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, ठीक है, और ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ये ओमेगा है अपना। ठीक,
फॉर एक्सेलरेटिंग केस, द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, ठीक है, तो अल्फा का डायरेक्शन भी यहीं पे आएगा, ठीक है। अगर डिसेलरेट हो रहा है पार्टिकल, लेट से सर्कुलर मोशन में है, ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ओमेगा तो इस डायरेक्शन में आएगा, लेकिन अल्फा कम्स आउट टू बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, मीन्स वो अपोज कर रहा है उसको, मीन्स वो डिसेलरेट हो रहा है। तो दिस इज द केस ऑफ डिसेलरेशन, यहाँ पे डिसेलरेट हो रहा है पार्टिकल और वहाँ पे एक्सेलरेट हो रहा है पार्टिकल, ठीक है। इफ जस्ट आई वांट टू टॉक अबाउट जस्ट द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, सिमिलर वे में दिया जाएगा, ठीक है। अगर पार्टिकल एक्सेलरेट कर रहा है तो सेम डायरेक्शन एज एंगुलर वेलोसिटी, इफ द पार्टिकल इज डिसेलरेटिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी आई कैन असाइन इट। तो होप यहाँ पे अपने को जस्ट एंगुलर वेरिएबल्स के जो टर्म्स है एनालॉगस जो हमने पढ़ा वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। तो जस्ट यू कैन टेक अ नोट ऑफ इट और फिर उसके बाद हम प्रोसीड करते हैं आगे। लेट्स प्रोसीड। तो अब आगे देखते हैं हम। इंपॉर्टेंट है, जस्ट टेक अ नोट, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। यहाँ पे जो वेलोसिटी हम डिफाइन कर रहे थे ना, ये केस में सर्कल के ये केस में ये जो वेलोसिटी थी, दिस इज लीनियर वेलोसिटी बिकॉज द पार्टिकल इज मूविंग लीनियरली, उसका जस्ट डायरेक्शन चेंज होते जा रहा है, तो ये लीनियर वेलोसिटी थी। और एंगुलर वेलोसिटी, इसका एंगल कितना ट्रेस हो रहा था वो एंगुलर वेलोसिटी थी, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन द टू दैट इज ओमेगा एंड वी, इन दोनों के बीच का रिलेशन वी हैव टू कैलकुलेट, ठीक है। जस्ट फॉर रेफरेंस यहाँ पे एक डायग्राम बना के रखते हैं। एक पार्टिकल यहाँ पे लेट से ये सेंटर है, ये पार्टिकल मूव होता है यहाँ से यहाँ पे, ठीक, एंगल बनता है डी थीटा, ये टाइम टी से स्टार्ट करता है, यहाँ पे आता है टी प्लस डी टी टाइम में, ठीक है। ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा था पार्टिकल, ठीक। यहाँ पे डेफिनेटली इसका कुछ डायरेक्शन वेलोसिटी होगी v, यहाँ पे भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी v, ठीक है। ये वेलोसिटी की बात हो गई यहाँ पे। अब ये जो वेलोसिटी है v, दिस इज लीनियर वेलोसिटी, वी यूजुअली डिनोट वेलोसिटी विथ लीनियर वेलोसिटी विद द टर्म v, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी की बात कर रहे हैं तो उसको हम डिनोट करते थे ओमेगा से, ठीक है। अब दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है, तो इसने यहाँ से पार्टिकल यहाँ तक आया तो उसने कितना पार्ट, लेट से इसका जो रेडियस है वो है r, क्या रेडियस है r, उसने कितना पाथ ट्रैवल किया, दिस इज द आर्क, ये आर्क उसने ट्रैवल किया एक्चुअली में। तो अगर मैं पूछूं तो आर्क और उसका रिलेशन होता है s इक्वल्स टू आर थीटा, एंगल एंड आर्क का जो रिलेशन है दिस इज गिवन एज s इक्वल्स टू आर थीटा। आई होप ये सब आपको पता होगा, क्लास 9th में भी हमने पढ़ा है ये चीज़ को, एरिया ऑफ सेक्टर में जब हम निकालते थे, तो s इक्वल्स टू आर थीटा, ठीक है। इसको मैं डिफाइन, लेट से आई डिफरेंशिएट इट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो दिस कम्स आउट टू बी डी एस बाई डी टी इक्वल्स टू आर, तो कॉन्स्टेंट है डी थीटा बाई डी टी, ऑलराइट। डी एस बाई डी टी इज नथिंग बट वेलोसिटी, ठीक है, इक्वल्स टू आर, ये क्या है, ये तो ओमेगा है ना, तो दिस रिलेशन वी हैव टू कीप इट इन माइंड, it gives us a relation between angular velocity and linear velocity, all right, ठीक है। लेट्स से इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। इफ आई लाइक डिफरेंशिएट वन मोर टाइम, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t अगेन, ठीक है, तो मुझे क्या मिलेगा, dv बाई डी टी इक्वल्स टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ऑलराइट। dv बाई डी टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज एक्सेलरेशन, दैट इज लीनियर एक्सेलरेशन, इक्वल्स टू आर, ये क्या है, ये तो अल्फा है, ऑलराइट, अल्फा है ये तो, ठीक है। तो ये रिलेशन हुआ लीनियर एक्सेलरेशन में और एंगुलर एक्सेलरेशन में जो रिलेशन है। होप यहाँ तक ये तो बहुत आसान चीज़ें थी, समझ में आ गई होंगी अपने को।
और इसके ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा होप। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन जो है ना, आगे हम फर्दर देखेंगे कि एक्सेलरेशन सर्कुलर मोशन में कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, बेसिक चीज़ और एक डिस्कस करनी थी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के रिलेटेड। अगर एक पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल में घूमता है तो उसने कितना एंगल ट्रेस किया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। मीन्स अगर एक पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट होके पूरा घूमता है, लेट से यहाँ से घूम के वापस यहाँ पे आता है, तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 2 पाई होगा, 0 नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वी आर टॉकिंग अबाउट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगल उसने कितना ट्रेस किया होगा? ये घूम के ये टीटा टीटा बनाते 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 यहाँ पे उसने पूरा कंप्लीट कर लिया, दैट कम्स आउट टू बी 2 पाई। तो हम याद रखेंगे कि फॉर 1 रेवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 2 पाई, नॉट 0। ठीक है, स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज, यार डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं हुआ, एंगल कितना ट्रेस किया उसने? कंप्लीट 2 पाई ट्रेस किया। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन टर्म्स ऑफ particle performing a circular motion for 1 revolution it comes out to be 2 pi. For 2 revolution 2 pi, 3 revolution 3 pi. So I can write theta as 2 pi n. ये आपको ध्यान में रखना है, theta is 2 pi n. n कुछ भी हो सकता है। For 1 revolution n is 1, for 2 it is 2, for 3 it is 3 and so on and so forth. ठीक है, तो यहाँ पे थीटा अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने को आ गई। अब वी विल डिस्कस मोर, वी विल एम्फसाइज मोर ऑन एक्सेलरेशन वाला पार्ट। एक्सेलरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसमें, जिसके बेसिस पे वी विल गो फॉर द डायनामिक्स पार्ट। ये सब जो हमने अभी तक जो देखा, इट कम्स अंडर काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। ये सब चीज़ें हम काइनेमेटिक्स में 11th में भी पढ़ चुके थे फॉर रेक्टिलिनियर मोशन। यहाँ पे हम सर्कुलर मोशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमें ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक चीज़ें हो गई, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सेलरेशन की, एंगुलर एक्सेलरेशन की। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एंगुलर एक्सेलरेशन। आई कैन अश्योर वन थिंग, अगर जिसको ये पार्ट समझ गया ना, तो सर्कुलर मोशन इसके बाद से तो फिर कुछ बचता ही नहीं उसमें ज़्यादा, फिर कुछ ज़्यादा दम नहीं बचता इस चैप्टर में। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन वाला पार्ट स्टूडेंट को क्लियर हो गया तब। ठीक है, तो हम एंगुलर एक्सेलरेशन को समझते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, डी ओमेगा बाई डी टी, ये हमें पता है। ऑलराइट, अब इसके बाद हम देखते हैं कि एंगुलर एक्सेलरेशन, दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट अल्फा। ठीक, तो ये जो टोटल एक्सेलरेशन है ना सर्कुलर मोशन पे, ठीक है, जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है सर्कल पे, ठीक है, ये 2 टाइप के एक्सेलरेशन एक्ट कर रहे हैं सर्कल पे। 2 टाइप के, स्टूडेंट माइट गेट कंफ्यूज, यार 2 टाइप के कैसे हो सकते हैं एक्सेलरेशन, या 2 एक्सेलरेशन एट अ बॉडी कैसे एक्ट कर सकते हैं? तो सर्कुलर मोशन में यही होता है कि एक पार्टिकल पे 2 एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली एक्ट करते हैं। दैट्स द रीज़न के सर्कल में घूमता है। ठीक है, कैसे? चलो डिफाइन करते हैं उसको। लेट्स से एक पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ओमेगा से घूम रहा है। अब वो फिलहाल घूम रहा है, तो उसका ये पॉइंट पे, ये इंस्टेंट पे उसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में होगा, टेंजेंशियल टू द सर्कल। ठीक है, ये पॉइंट पे वो इसमें होगा, ये पॉइंट पे वो इधर होगा, ये पॉइंट पे वो इधर होगा। ठीक है, यहाँ तक होप अपने को ये तो क्लियर हो गई है बात, ये हमने प्रीवियस उसमें भी डिस्कस किया है। ये वेलोसिटी अगर टेंजेंशियली चेंज हो तो जाहिर सी बात है इसमें एक्सेलरेशन आएगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इज व्हाट? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज आएगा तो जाहिर सी बात है उसमें एंगुलर एक्सेलरेशन आना चाहिए। ठीक है, तो वो एक एक्सेलरेशन होगा, वो एक एक्सेलरेशन होगा।
चलो ठीक है, तो आई कैन से एक एक्सेलरेशन जो है जो मुझे पता है ए, वो dv/dt है। मैं इसको टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि टेंजेंशियली एक्ट कर रहा है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें एक और एक्सेलरेशन है जो टूवर्ड्स सेंटर एक्ट करता है। आई विल एक्सप्लेन कि वो क्या है, कैसे आता है वो। जो एक और एक एक्सेलरेशन है जो इसमें टूवर्ड्स सेंटर एक्ट कर रहा है, ठीक है। कैसे सेंटर पे एक्ट कर सकता है एक एक्सेलरेशन? और इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से कि अगर कोई बॉडी है ऑफ मास m, ठीक है, अगर वो स्ट्रेट पाथ पे, अगर मैं इसके ऊपर एक फोर्स लगाऊं, इसके ऊपर लेट्स से मैंने एक फोर्स लगाया, ठीक है, तो इसके पास कुछ एक्सेलरेशन आएगा और वो स्ट्रेट चलती जाएगी, वो स्ट्रेट चलती जाएगी, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर मैंने इसके ऊपर साइमल्टेनियसली एक और एक फोर्स लगाता हूँ, मैं इसके ऊपर साइमल्टेनियसली एक और एक फोर्स लगाता हूँ जो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होती है इसके, जो इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक और एक फोर्स है F' जो इसके ऊपर एक्ट कर रही है। अब इस फोर्स की वजह से क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे भी जाएगा और इधर भी मूव होगा, तो इनडायरेक्टली इसका पाथ कुछ ऐसा होता जाएगा, ये आगे आगे भी जाएगा और ये बेंड भी होता जाएगा, आगे भी जाएगा और ये बेंड भी होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक फोर्स ऐसा भी लग रहा है और एक फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो डोंट यू थिंक कि ये जो पाथ लेगा ये सर्कुलर पाथ लेगा? अगर एक फोर्स जो स्ट्रेट में जा रहा है, एक फोर्स जो साइमल्टेनियसली ऊपर से भी एक्ट कर रहा है, तो दोनों जब साइमल्टेनियसली एक्ट करेंगे तो पार्टिकल आगे भी जाएगा और बेंड भी होता जाएगा, तो डेफिनेटली इट विल गो अंडर अ सर्कुलर पाथ, या वो एक सर्कल का शेप लेना शुरू करेगा। होप यहाँ तक अपने को चीज़ समझ में आ रही है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ भी हो रहा है, ठीक है, ये आगे भी जा रहा है लेकिन ये पाथ अपना सर्कुलर ले रहा है, मतलब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स भी एक्ट कर रही है। मीन्स इसके ऊपर फोर्स कब एक्ट करेगी, या मैं बोल सकता हूँ फोर्स कब आई, एक्सेलरेशन, मतलब इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट को हो रहा होगा। अगर उसके ऊपर एक्ट हो रहा है मीन्स उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन ज़रूर है, ठीक है। अगर उसके पास एक्सेलरेशन है जब भी वो फोर्स आ रहा है, वहाँ पे फोर्स है जब भी एक्सेलरेशन आएगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि वी नो F = ma। एक्सेलरेशन है, फोर्स आएगा जब भी तो एक्सेलरेशन आ रहा है, ये एक्सेलरेशन है जब भी तो फोर्स है, ठीक है। तो मीन्स ये पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होना चाहिए टुवर्ड्स परपेंडिकुलर, यानी कि अगर मैं बात करूं तो वो जो एक्सेलरेशन इसके पास होता है ना, वो दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, परपेंडिकुलर। यानी कि मैं इससे जब भी 90 डिग्री पर कुछ चीज़ बनाऊं, किससे? टेंजेंशियल वेलोसिटी से। डोंट गेट कंफ्यूज, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से जो मैं एक्सेलरेशन बना रहा हूँ दैट इज टुवर्ड्स द सेंटर, मीन्स ये दोनों आपस में जैसे ये परपेंडिकुलर थे वैसे ये दोनों भी परपेंडिकुलर होंगे, दैट्स द रीजन इट इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन। यहाँ तक होप अपने को समझ में आ गया होगा। तो इस एक्सेलरेशन को मैं बोलता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलता हूँ मैं? इसकी वैल्यू अब हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी वैल्यू तो मुझे पता है, इक्वल्स टू dv/dt, और आई कैन राइट एट r अल्फा, राइट इट एज r अल्फा। ar क्या है? ये एक नया टर्म है, इसको मैं बोलता हूँ रेडियल एक्सेलरेशन। ये तो है टेंजेंशियल, दिस इज टेंजेंशियल, ये है अपना रेडियल, ठीक है। तो रेडियल एक्सेलरेशन किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? दो इट्स नॉट इन योर गिवन दो द डेरिवेशन इज नॉट गिवन इन योर सिलेबस, लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा डेरिवेशन है, मैं उसको चाहता हूँ कि आप लोग भी उसको साथ में सीख लें, बिकॉज प्रीवियस ईयर तक वो डेरिवेशन था बुक के अंदर, नाउ दे हैव एक्सक्लूडेड इट फ्रॉम योर सिलेबस। तो फिर भी मैं उसको एक बार डिराइव कर देता हूँ यहाँ पे शॉर्ट में, सो दैट यू विल हैव अ आइडिया के दो एक्सेलरेशन कौन से है उसके पास। होप अपने को नाम तो समझ में आ गया, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग द टेंजेंट, और एक रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग द रेडियस और टुवर्ड्स द सेंटर, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है अपने को बात? तो लेट्स मूव और इसको पता करते हैं कि अब ये एरियल जो रेडियल है, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से एक सर्कल, मुझे पता चल गया है कि यहाँ पे
टेंजेंट पे एक एक्सेलरेशन एक्ट करने वाला है और एक टुवर्ड्स सेंटर एक एक्ट कर रहा है, मुझे पता नहीं अभी, ठीक है, लेकिन एक टुवर्ड्स सेंटर भी एक एक्सेलरेशन है वो एक्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक। तो मैं इसका फिलहाल अभी क्या डिफाइन करता हूँ, यूनिट वेक्टर डिफाइन कर लेता हूँ दोनों के लिए। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जो मुझे डायरेक्शन बताएगा कि वो वेक्टर की डायरेक्शन किस तरफ होगी। अगर ये मैं बोल रहा हूँ ये रेडियल एक्सेलरेशन, तो लेट्स से मैं इसका डायरेक्शन इस तरह डिफाइन करता हूँ ER, ठीक है। यूनिट वेक्टर इस साइड मैंने डिफाइन कर लिया। अब जो भी उसकी वैल्यू आएगी, अगर नेगेटिव आएगी तो मीन्स उसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए यूनिट वेक्टर का। इफ़ इट कम्स आउट टू बी पॉजिटिव तो इसका डायरेक्शन इस तरफ जो मैंने लिया वो सही है। इट्स जस्ट एन अजम्पशन कि मैंने उसको इस तरफ डिफाइन किया है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ये डायरेक्शन में होगा तो मैंने उसको डिफाइन कर लिया ET कैप, मीन्स टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो भी डायरेक्शन है मैंने इस डायरेक्शन में डिफाइन किया ET कैप, यूनिट वेक्टर अलोंग टेंजेंट, ठीक है भाई। चलो ये हो गई बात। अब क्या करेंगे ना, वी विल टेक अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पे कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लेंगे x एंड y। वी नो कि ये j कैप होता है और ये यूनिट वेक्टर अलोंग एक्सिस i कैप। ये सब चीज़ें हमने 11th में, क्लास 11th में पढ़ रखी हैं कि यूनिट वेक्टर क्या होते हैं, और i कैप से डिनोट किया जाता है x एक्सिस को, j कैप से डिनोट किया जाता है y एक्सिस को, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम इसको भी डिफाइन करेंगे। यहाँ पे इसको रिजॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा, इट कम्स आउट टू बी, लेट्स से ये एंगल अपना थीटा था जो पार्टिकल बना रहा था फ्रॉम हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, ठीक है। तो ये भी थीटा ही होगा, ठीक। तो दिस कम्स आउट टू बी कॉस थीटा और ये आएगा अपना ER साइन थीटा, ठीक है। अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करता हूं तो ठीक, ER cos थीटा एंड ER sin थीटा। सिमिलरली यहाँ पे भी इसको भी रिजॉल्व करेंगे तो इसका रिजोल्यूशन कुछ ऐसा होगा, और लेट्स से मैं उसको यहाँ लिख लेता हूँ। ये था अपना वो ET कैप, तो इसको जब हमने रिजॉल्व किया तो ये ऐसा आया कुछ, और ये आया ET sin थीटा, बिकॉज ये थीटा होगा ये केस में अपने, ठीक है ना, ये थीटा होगा। इसको ऐसा हम बनाएंगे जब, तो ये थीटा मीन्स ये पार्ट भी थीटा उसका, ठीक है, ऐसा करके इसको जब यहाँ से डिफाइन करेंगे तो, ठीक है, ये थीटा होगा तो ये 90 माइनस थीटा होगा, ऑलराइट। तो इसीलिए ये E sin थीटा i कैप, और ये तुम्हारा होगा ET cos थीटा j कैप। बस ये इतना सा खेल है, ये रेजोल्यूशन इसका और इसका हमें समझ में आ गया तो दैट्स इट, ठीक। तो व्हाट आई कैन राइट, अगर मुझे लिखना है कि ET कैप का डायरेक्शन क्या है तो आई कैन राइट मॉड ऑफ ET कैप, और इसमें क्या क्या होगा, माइनस ET कैप क्योंकि एक्स एक्सिस के अपोजिट डायरेक्शन में, साइन थीटा आई कैप, और ये ऊपर है तो प्लस cos थीटा j कैप। सिमिलरली फॉर रेडियस का यूनिट वेक्टर हम लिखेंगे ER पॉजिटिव एक्स एक्सिस में तो cos थीटा i कैप, और इसमें लिखेंगे हम ER कैप साइन थीटा j कैप, ऑलराइट। यहाँ तक हो गया चीज़ फ्रॉम द डायग्राम। इसके बाद क्या करना है, द मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर इज 1, एज वी नो कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है। तो ये सारी वैल्यूज़ को हम रिप्लेस कर देंगे, तो इसकी वैल्यू जस्ट कम्स आउट टू बी I sin थीटा i कैप प्लस cos थीटा j कैप, और इसकी वैल्यू आ जाएगी cos थीटा i कैप प्लस sin थीटा j कैप, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, वेलोसिटी वेक्टर, लेट्स से वेलोसिटी वेक्टर। तो इसका मैं क्या लिख सकता हूँ, यूनिट वेक्टर को हम लिखते कैसे, बेसिकली यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिखते हैं, लेट्स से मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो इसका जो यूनिट वेक्टर का लिखने का तरीका है वो है वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, ये है किसका वेक्टर, ठीक है, अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, यानी कि बात समझ में आ रही है, कुछ डाउट है इसमें, ठीक है।
या आई कैन मोर प्रिसाइजली इसको और थोड़ा अच्छे से लिखेंगे तो ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं, या मैं आई कैन से वी बार इक्वल्स टू वी ई टी का कैप सफिक्स में है ये, ठीक है। यहाँ तक होप अपने को समझ में आ रहा है, ठीक। अब इसके बाद जस्ट आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई टी, यहाँ पे ई टी का वैल्यू रख देता हूँ मैं, तो ये आ जाएगा। इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे ना डिफरेंट, बिकॉज वी नीड एक्सेलरेशन ना, तो हम इसको करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये आ जाएगा ए ठीक है। यहाँ पे u इंटू वी लगा देंगे, u बाई वी का तो अपने को पता ही होगा, प्लस होप यहाँ तक अपने को क्लियर हुआ बात, ठीक है। जस्ट u इंटू वी लगाया मैंने डेरिवेटिव का, और कुछ भी अपने कुछ अलग नहीं किया इसमें। जस्ट आई विल सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ई टी, यहाँ से ये तो सिंपली मुझे दिख रहा है कि ये तो a हो गया ना, डी वी बाई डी टी इज वॉट, डी वी बाई डी टी इज a, तो यार आई कैन राइट a प्लस वी, ई टी को क्या लिख सकता हूँ मैं, ई टी है ना अपना, तो आई कैन राइट माइनस साइन थीटा आई कैप प्लस कॉस थीटा जे कैप, ये लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ ले लेते हैं इसको, इसके बाद क्या करना है अपने को, डी वी बाई डी टी इक्वल्स टू ए प्लस, ये हो गया था अपना ई टी इंटू, यहाँ पे ई टी भी रह गया अपना, आई फॉरगॉट टू राइट ई टी आर, ई टी ए है यहाँ पे, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं, यहाँ पे ई टी कैप ए है प्लस वी ऐसे ही रहेगा, माइनस साइन थीटा का होता है, साइन थीटा का डेरिवेटिव इज कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा आई कैप, और वहाँ पे कॉस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो दिस कम्स आउट टू बी माइनस साइन थीटा जे कैप, ऑलराइट। इसको अगर इसमें से मैं माइनस साइन बाहर निकाल लूँ तो क्या हो जाएगा, माइनस बाहर आ जाएगा v, और ये बचेगा अपना कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, ये तो ई आर है ना, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई आर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया, ओके साइन थीटा, ओके। अच्छा थीटा का भी यहाँ पे डेरिवेटिव निकलेगा, यानी कि डी थीटा बाय डी टी भी लिखना होगा मुझे, डी थीटा बाय डी टी, लेट्स से मैंने उसको यहाँ लिख दिया है, कॉमन निकाल भी दिया है, डी थीटा बाय डी टी, व्हाट इज डी थीटा बाय डी टी, ओमेगा होगा, ठीक है। तो आई कैन से माइनस वी ओमेगा ई आर का कैप, होप यहाँ तक अपने को समझ में आई है बात, ठीक है। इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो रेडियस का डायरेक्शन वी हैव कंसिडर्ड इट बी अवे फ्रॉम द सेंटर, बट यहाँ पे वो नेगेटिव आ रहा है, इसका डायरेक्शन नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि जो अपना अजम्पशन है दैट्स नॉट करेक्ट, उसका अजम्पशन टुवर्ड्स सेंटर होना चाहिए था, मीन्स उसका डायरेक्शन इस तरफ होना चाहिए था, जो कि मैंने इसके प्रीवियस उसमें आपको बताया भी था कि दिस एक्सेलरेशन ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, ये तुम्हारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है ए टी, जो अलॉन्ग टेंजेंट एक्ट करता है, और ये ओमेगा को आई कैन राइट वी बाय आर, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। अगर ये आर रेडियस है इसका, और ये हो जाएगा ई आर कैप, सो ये जो टर्म है ना ये वाला, दिस इज एक्टिंग अलॉन्ग व्हाट, रेडियस, ठीक है ना, ये यूनिट वेक्टर है अलॉन्ग रेडियस, सो आई कैन राइट इट एज टोटल एक्सेलरेशन। होप यहाँ तक अपने को समझ में आ गया है बात, ठीक है।
तो मुझे एक्सेलरेशन जो मिले बेसिकली वो एक तो मिला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग टेंजेंट, और एक मुझे मिला रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज एक्टिंग अलोंग रेडियस। ठीक है, तो मुझे यहाँ से पता चल रहा है कि इसके पास जो पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इट इज़ हैविंग टू एक्सेलरेशन ऑल टुगेदर, वन इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, अनदर वन इज रेडियल एक्सेलरेशन। तो टू एक्सेलरेशन साइमल्टेनियसली एक्टिंग ऑन अ बॉडी सो दैट इट इसी की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, तो आई कैन राइट के जो नेट एक्सेलरेशन है वो होता है AT प्लस AR। ठीक है, AT प्लस AR, यहाँ तक होप अपने को क्लियर हो गई बात। इसके बाद इसका मैग्नीट्यूड अगर मुझे निकालना होगा तो सिंपल ये इसका मैग्नीट्यूड निकल के आ जाएगा। ठीक है, होप इट इज विजिबल। चलो, तो यहाँ तक बात हो गई अपनी रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के बारे में। ठीक है, ये डेरिवेशन अपने प्रीवियस सिलेबस में था जो कि अब एक्सक्लूड हो चुका है। जस्ट हमें ये अब याद रखना है यहाँ पे कि जो भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में है उसके पास दो एक्सेलरेशन होंगे, एक तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन वो एक्सेलरेशन होगा जो टुवर्ड सेंटर एक्ट कर रहा होगा उसके ऊपर पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, और एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा जो कि टेंजेंशियली उसके ऊपर एक्ट कर रहा होगा। अब कभी भी याद रखना है जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ना, इट्स लाइक अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी हॉरिजॉन्टली, तो वो उसका हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड ही चेंज करेगा, वो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। जैसे मैंने ये एग्जांपल में आपको बताया था, अगर वो पार्टिकल यहाँ से मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, मैं इस तरफ फोर्स लगा रहा हूँ, तो वो जस्ट उसकी फोर्स इस डायरेक्शन में बढ़ा सकता है या घटा सकता है। अगर मैंने इस फोर्स को बढ़ा दिया तो उसका मैग्नीट्यूड ही बढ़ाएगा, सिर्फ उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती है फोर्स। क्यों? बिकॉज दिस पार्टिकल इज रेस्ट्रिक्टेड टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन। तो इसीलिए ये फोर्स जो है हॉरिजॉन्टल फोर्स जो है, जो कि अपने केस में एक टेंजेंशियल फोर्स की मैं बात कर रहा हूँ या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ अ पार्टिकल, rather it is responsible for changing the magnitude only of the particle। ठीक है, तो ये जो फोर्स है टेंजेंशियल जो फोर्स होती है वो हमेशा सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करती है, ना कि डायरेक्शन। लेकिन परपेंडिकुलर फोर्स जो होती है वो डायरेक्शन चेंज करने में काम आती है। ठीक है, तो फ्रॉम दिस पॉइंट आई कैन कंक्लूड कि अगर कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में उसको घूमना है या सर्कल में उसको घूमना है तो उसके पास एक फोर्स होनी ज़रूरी है जो कि है परपेंडिकुलर फोर्स, मीन्स जो उसका डायरेक्शन चेंज करे हमेशा। ठीक है, अगर एक टाइम पे टेंजेंशियल फोर्स या टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसके पास ना हो तब भी वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है, अगर उसके पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन अवेलेबल हो तब। ठीक है, तो रेडियल एक्सेलरेशन या परपेंडिकुलर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है डायरेक्शन चेंज करने में, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो ही आई कैन से कि वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जा रहा है। मीन्स अगर मैं उसको यहाँ से पुश करूँगा जब भी उसका पाथ चेंज होगा नीचे की तरफ, विच वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे दो एक्सेलरेशन AT एंड AR। AT इज जस्ट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच आई कैन राइट एज dv/dt। कहाँ गया हो, dv/dt को जस्ट मैं लिख सकता हूँ कि वो जो है एंगुलर एक्सेलरेशन है, या फिर जो v है v इज स्पीड, उसको हम स्पीड के टर्म्स में लेंगे दैट, क्योंकि वो सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो दैट्स द रीजन वी कंसिडर इट एज एंगुलर स्पीड। ठीक है, dv/dt। होप ये अपने को क्लियर हो गया यहाँ पे। सो प्रोसीड करते हैं आगे थोड़ा सा और। अभी तक हमने समझा कि सर्कुलर मोशन में अगर पार्टिकल परफॉर्म करना है उसको, तो उसके पास एक एक्सेलरेशन होना ज़रूरी है जो कि टेंजेंशियल जो कि रेडियल एक्सेलरेशन होगा। ठीक है, अगर उसके पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एक वक्त को नहीं भी है तब भी वो सर्कुलर मोशन में अपने आप को परफॉर्म करा सकता है या वो सर्कुलर मोशन में रह सकता है। अगर उसके पास सिर्फ रेडियल एक्सेलरेशन है तब, टेंजेंशियल का कोई ज़रूरी नहीं है कि टेंजेंशियल उसके पास हो। ठीक है, अगर नहीं भी हो तब भी द पार्टिकल कैन परफॉर्म सर्कुलर मोशन। चलो देखते हैं उसके केसेस। फर्स्ट केस लेते हैं अपन A,
फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात करते हैं हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो सेम स्पीड से अपने आप को रोटेट कर रहा हो, ठीक है। मीन्स क्या हुआ इसका, सर्कुलर मोशन का ये मतलब हुआ कि उसकी जो वेलोसिटी है, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या हो, कांस्टेंट हो। उसका मैग्नीट्यूड हमेशा कांस्टेंट हो। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होने का क्या मतलब हुआ भाई कि 80 0 होना चाहिए, 80 शुड बी 0, बिकॉज ये एक्सेलरेशन सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहा है बॉडी का, ना कि डायरेक्शन। तो अगर उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो गया, यूनिफॉर्म का मतलब यही होता है। यूनिफॉर्म का मतलब पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद यूनिफॉर्म एंगुलर स्पीड, ठीक है, या यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। वेलोसिटी में भी हम वी आर टू बी प्रिसाइज, हम किसकी बात कर रहे हैं, स्पीड की बात कर रहे हैं। उसके बाद दो चीज़ें होती हैं, डायरेक्शन और वेलोसिटी। डायरेक्शन तो हर बार उसको चेंज करना ही पड़ेगा, जब भी वो सर्कुलर मोशन में आएगा उसको डायरेक्शन चेंज करना ही पड़ेगा, वरना वो सर्कुलर मोशन में रह ही नहीं सकता, ठीक है। तो आई एम टॉकिंग अबाउट स्पीड। स्पीड अगर उसकी कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट स्पीड से अगर वो घूम रहा है, तो आई कैन से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन उसमें नहीं आएगा, तो AT विल बी 0, या आई कैन से मॉड ऑफ dv/dt इज 0, ठीक है। अगर AT 0 हुआ तो अल्फा भी 0 होना चाहिए, बिकॉज सिंस AT इक्वल्स टू आर अल्फा, अल्फा 0 होगा जब भी तो AT भी 0 है, या AT 0 है जब भी तो अल्फा भी 0 है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और ठीक है, अब इसमें AT 0 हो गया तो आई कैन से जो नेट एक्सेलरेशन होगा, नेट एक्सेलरेशन, तो वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा होगा, जस्ट हमने प्रूफ किया, वो सिर्फ AR पे डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है ना। तो उसका मैग्नीट्यूड अगर मैं बोलूँगा, नेट एक्सेलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या आएगा, जस्ट AR आएगा और v²/r आएगा, ठीक है। तो दिस इज द केस फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सिमिलरली आई कैन डिफाइन द केस फॉर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बी पार्ट में हम देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके लिए क्या हो सकती हैं केसेस, ठीक है। इसमें AT 0 नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्पीड भी अब चेंज हो रही है, इट्स मूविंग नॉन यूनिफॉर्मली, उसकी स्पीड कभी भी बदल रही है। अगर वो बदल रही है तो उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आ रहा होगा। AT इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो आई कैन से dv/dt इज नॉट इक्वल्स टू 0। सिमिलरली अल्फा इज नॉट इक्वल्स टू 0। और उसमें जो है नेट एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो दोनों की वजह से आ रहा होगा। किसकी वजह से, एक तो तुम्हारा AT की वजह से और एक तो तुम्हारा R रेडियस की वजह से, रेडियल एक्सेलरेशन। तो उसमें जो नेट का इसका मैग्नीट्यूड भी आएगा तो क्या आएगा, वो दोनों की वजह से आएगा, मीन्स AT² + AR², ठीक है। तो ये नोट कर सकते हैं हम अभी फ़िलहाल के लिए। ये सारी चीज़ें अपने को प्रॉब्लम में यूज़ होंगी, ठीक। प्रोसीड करते हैं आगे। ये जस्ट जो डेरिवेशन अपने किया है ना, ये जस्ट एक फील आना चाहिए अपने को कि यार ये फार्मूलेज आ कहाँ से रहे। तो ये फार्मूलेज इस तरीके से हमने डिराइव किए। और अब हम देखेंगे कि जो वेलोसिटी है और जो अपना नेट एक्सेलरेशन है ना, उसका क्या क्या चीज़ें पॉसिबल है उन दोनों के बीच में, ठीक है। मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ यहाँ पे, नोट डाउन कर रहा हूँ, जस्ट आप लोग उसको नोट करके रखो और फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि वो है क्या, ठीक है। ठीक, इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट मास। इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट मास। क्यों बोला इसको ऐसा, मुझे क्या पता है, पावर इज फोर्स इनटू वेलोसिटी। फोर्स को मैं लिख सकता हूँ ma, ठीक है ना। वेलोसिटी तो वेलोसिटी है ही, ठीक। इंस्टेंटेनियस पर यूनिट मास, अगर मैं m को यहाँ डिवाइड कर दूँ तो ये बचता है AV, वो यही चीज़ है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ से आया है ये इंस्टेंटेनियस पावर पर यूनिट मास, ठीक। इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये अपने को अभी समझ में आएगा।
जब कभी भी नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की जब डायरेक्शन या मुझसे पूछता है कि इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए, तो वहाँ पे ये चीज़ मुझे काम आती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ एक चीज़, अगर लेट्स से एक बॉडी है, वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक। अब इसमें इसकी वेलोसिटी लेट्स से ये इस तरफ है v, ठीक। इसका एक्सेलरेशन भी होगा, ठीक है, एक्सेलरेशन भी होगा, टुवर्ड्स द सेंटर होगा, ठीक है। एक टेंजेंशियल भी हो सकता है, क्योंकि पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी आना चाहिए इसमें, और रेडियल तो रहेगा ही, वेदर नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, रेडियल एक्सेलरेशन तो इसमें रहना ही चाहिए, ठीक है। अब होता क्या है ना कि लेट से अगर मैं बोलता हूँ कि ये जो पार्टिकल है इसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अगर ये एक्सेलरेट हो रहा है तो जाहिर सी बात है इसका एक्सेलरेशन और इसका वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो सेम होना चाहिए। तो व्हाट आई कैन राइट इज के फर्स्ट केस लेते हैं एक्सेलरेशन वाला, ठीक है। एक्सेलरेशन मैंने अगर लिया है तो यहाँ पे इसका अल्फ़ा भी यही डायरेक्शन में आएगा, या अल्फ़ा की जगह मेरे को प्रिसाइजली बोलना चाहिए 80, ठीक है। और ए आर तो इस डायरेक्शन में आ ही रहा है, बात समझ में आ रही है। तो 80 और ए आर, जाहिर सी बात है इसका जो रिजल्टेंट बनेगा वो किधर बनेगा, वो यहाँ कहीं बनेगा, ये ए नेट कहलाएगा मेरा। अगर मुझसे क्वेश्चन में किसी ने पूछा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और या वेलोसिटी और जो तुम्हारा नेट एक्सेलरेशन है उन दोनों के बीच का एंगल क्या है व्हेन द पार्टिकल इज एक्सेलरेटिंग, सो इन दिस केस आई कैन से कि वो एक्यूट होगा। वो क्या होगा, एक्यूट एंगल बना रहा है, नेट एक्सेलरेशन और वेलोसिटी यहाँ पे देखेंगे तो हम क्या बना रहे हैं, एक्यूट बना रहा है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90, लेस देन 90। एक और एक केस ले लेते हैं माजूमी, लेट्स से कि ये पार्टिकल जो मूव हो रहा है, ये सेंटर है अपना, यहाँ पे वापस से ए आर आ गया, ये तेरा वेलोसिटी गया, तो ये अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपोजिट है किसके, वेलोसिटी के। ये कौन सा केस है, ये केस है डिसेलरेशन वाला, ठीक है। तो इसमें नेट इन दोनों का जो एक्सेलरेशन का नेट आएगा वो समवॉट ये डायरेक्शन में आएगा, ए नेट। तो यहाँ पे ए नेट और वेलोसिटी के हम डायरेक्शन एंगल की बात करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल विच इज़ ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे वो केसेस हम पॉसिबली डिफाइन करेंगे सारे के सारे, ठीक है। जब ए डॉट वी 0 हो तो ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस होगा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे ए नेट जो होगा ना वो अलॉन्ग रेडियस ही आ जाएगा, मीन्स वेलोसिटी के 90 डिग्री पे आएगा, और 90 डिग्री मीन्स कॉस, ये अगर डॉट प्रोडक्ट है अपना, ये डॉट प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ए भी कॉस थीटा होगा, कॉस थीटा की वैल्यू इज 90, तो इट कम्स आउट टू बी 0, ठीक है। सिमिलरली इसका वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आएगा, ग्रेटर देन 1, और इसी का वैल्यू लेस देन 1 भी आएगा। ग्रेटर देन 1 कब आएगा, जब वो एक्यूट एंगल होंगे, मीन्स 0 से 1 के बीच में जब कॉस थीटा की वैल्यू जब कहाँ से कहाँ लाई करेगी, 0 से लेके कॉस 90, यानी कॉस 90 पे तो 0 हो ही गया है, ठीक है। तो उससे पहले तक सारी पॉजिटिव वैल्यू देता है कॉस, ठीक है, √3/2 1/2 एंड ऑल, ठीक है। तो वहाँ पे वो ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। सिमिलरली जब ये लेस देन 1 होगा मीन्स यहाँ पे ऑब्ट्यूज हो गया, ऑब्ट्यूज मीन्स मोर देन 90। अगर मैं cos 180 की बात करूँ तो -1 होता है, तो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव मीन्स लेस देन 0 बोल सकते हैं हम, या यहाँ पे ये केस में ग्रेटर देन 0 और ये केस में लेस देन 0। ऑलराइट, बात समझ में आ गई अपने को। तो ये 4 केसेस पॉसिबल थे, जस्ट नोट इट डाउन, फिर उसके बाद हम आगे प्रोसीड करते हैं।
यहाँ पे वेलोसिटी जब, हाँ इसको यहाँ पे थोड़ा सा और नोट अच्छे से नोट कर लेते हैं इसको। ये केस में ये यूसीएम का केस होगा, ठीक है। ये केस जो होगा यहाँ पे वेलोसिटी बढ़ रही होगी, ये वाले सो यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, तो ये वाला केस वी विल कंसिडर। और वेलोसिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही होगी मीन्स दिस केस, तो यहाँ पे लेस देन 0 होगा। ऑलराइट, तो यहाँ तक होप अपने को क्लियर हो गई पिक्चर। प्रोसीड करते हैं आगे। नाउ वी विल चेक डायनामिक्स। आप थोड़ा डायनामिक्स के पार्ट में घुसते हैं, डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स बेसिक इसका मतलब है सेंटर सीकिंग फोर्स, ठीक है। सेंटर सीकिंग फोर्स इन द सेंस मीन्स इट्स अ सेंटर लविंग फोर्स। ये फोर्स हमेशा जब एक्ट करती है जब कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में होता है, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि सर्कुलर मोशन में अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसके ऊपर एक एक्सेलरेशन एक्ट करेगा टुवर्ड्स द सेंटर, टुवर्ड्स द सेंटर। सपोज लेट से ये सेंटर है, तो ये ए आर हमेशा इसकी तरफ एक्ट करेगा। अगर इस डायरेक्शन में ये ए आर एक्ट कर रहा है, दैट मीन्स इसके ऊपर कोई ना कोई तो फोर्स एक्ट कर रही होगी जब ये एक्सेलरेशन आ रहा है यहाँ पे। ऑलराइट, तो वो जो फोर्स है ना, उस फोर्स को वी टर्म्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो F है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड आई कैन राइट F इक्वल्स टू MAR, वेर AR इज द रेडियल एक्सेलरेशन। सो और AR की वैल्यू हमने अभी जस्ट कैलकुलेट की है पिक्चर, तो वो है इफ R इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो सेंट्रीपिटल फोर्स FC की वैल्यू कम्स आउट टू बी mv²/r, ठीक है। तो कभी भी कोई भी बॉडी जब मूव कर रही होगी किसमें, सर्कुलर मोशन में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा जो कि नेसेसरी फोर्स होगा। दिस फोर्स इज नेसेसरी फोर्स फॉर पार्टिकल टू परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन। अगर ये फोर्स नहीं है तो उसके ऊपर ये पार्टिकल कभी भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म नहीं कर सकता। ऑलराइट, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ मस्ट फोर्स फॉर अ सर्कुलर मोशन। अब अलग अलग केसेस में सेंट्रीपिटल फोर्स को अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। लेट्स से अगर मैं बोलता हूँ फर्स्ट केस में, इफ अ स्ट्रिंग इज टाइड टू अ, एक स्ट्रिंग पे एक पत्थर हमने टाई किया एक स्ट्रिंग पे और उसको जस्ट हमने गोल घुमाना शुरू किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये गोल घूमना, इसका जो गोल घूमना है ये किसकी वजह से आ रहा है? ये आ रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग की वजह से। क्योंकि लेट्स से ये वो स्ट्रिंग है और ये वो बॉब है जिसको हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे भी हॉरिजॉन्टल, ये भी हॉरिजॉन्टल में घूम रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये घुमा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर एक सेंट्रीपिटल फोर्स आनी चाहिए। वो फोर्स किसकी वजह से आएगी? टेंशन की वजह से आएगी, क्योंकि टेंशन एक्ट करेगा इन द स्ट्रिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो यहाँ पे ये केस, फर्स्ट केस में यहाँ पे T इज प्रोवाइडिंग नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। जो भी इसकी रेडियस होगा या जो भी इसका लेंथ होगा वो यहाँ पे रख सकते हैं हम। अलग अलग सिनेरियोज में अलग अलग चीज़ें प्रोवाइड करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स को। फॉर एग्जांपल सन है ये, इसके अराउंड में अगर अर्थ घूम रहा है, ठीक है, ये अर्थ है अपना अर्थ, इफ इट इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो इसके बीच में भी सेंट्रीपिटल फोर्स आनी जरूरी है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा होगा यहाँ पे? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, क्योंकि सन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखेगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे ये जो फोर्स दे रहा है ये कौन दे रहा है? ये ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पे टेंशन प्रोवाइड कर रहा था, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। सिमिलरली अगर एक न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अराउंड अगर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पे कौन देगा वो फोर्स? इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन देगा। वो क्या प्रोवाइड करेगा? ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा ताकि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सके, ठीक है। तो अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग चीज़ें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती हैं। होप ये क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद मूव करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरफ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक स्यूडो टाइप की फोर्स है। इट्स नॉट अ रियल फोर्स। क्यों रियल नहीं है वो? क्योंकि
अगर मैं एक बात जस्ट वी कैन एनालाइज इट, यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला जो था वो था F इक्वल्स टू mv²/r, ये हम याद रख लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैं तब महसूस कर सकता हूँ जब आई विल बी इन अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सॉरी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जब मैं एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होऊंगा या ऑब्जर्वर, if a observer is in a accelerated frame of reference and it is observing a circular motion, तब he can conclude कि उसके ऊपर एक और एक फोर्स एक्ट कर रहा होगा जो कि अवे फ्रॉम द सेंटर होगा। इसका एक बेस्ट एग्जांपल आई कैन गिव, इफ लेट्स से वी आर ट्रैवलिंग इन अ बस और इन अ कार, और वो कार एक स्ट्रेट रोड पे जाते समय लेफ्ट कर्व आता है और वो लेफ्ट टर्न लेती है, तो वी ऑल मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड के वी आर लीन्ड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। तो हम राइट की तरफ लीन कर जाते हैं। कब? जब हम एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में होते हैं तब वो फोर्स मुझे फील होती है कि मैं राइट की तरफ लीन हो रहा हूँ। इफ़ द सेम थिंग इज ऑब्जर्व्ड बाय एन ऑब्जर्वर नॉट इन एन एक्सेलरेटेड फ्रेम, तो उसके लिए वो फोर्स नहीं होगी, ठीक है। वो फोर्स ऑब्जर्व नहीं कर सकता। वो फोर्स कब ऑब्जर्व करेगा? जब वो खुद एक एक्सेलरेटेड फ्रेम में हो या वो खुद उस कार के अंदर मौजूद हो, तब उसके ऊपर वो फोर्स लगेगी जो उसको राइट तरफ लीन करेगी, ठीक है ना। तो ये जो फोर्स है, इसी टाइप के फोर्स को हम बोलते हैं सूडो फोर्स। इफ यू आर नॉट क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स, यू कैन वॉच माय लेक्चर सूडो फोर्स इन NLM. जस्ट गो इन अ सर्च बॉक्स एंड टाइप सूडो फोर्स बाय फिजिक्स स्कोरर, यू विल गेट द डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द सूडो फोर्स पार्ट, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा ना, वो एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही काम करेगा, ठीक है। इफ आई एम ऑब्जर्विंग द थिंग फ्रॉम आउटसाइड द फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज नॉन एक्सेलरेटेड, आई विल से कि उस बॉडी पे सिर्फ सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा जो कि टुवर्ड सेंटर होगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के लिए दैट ऑब्जर्वर शुड बी इन अ फ्रेम ऑफ शुड बी इन अ नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यानी कि सपोज करो इस पार्टिकल के साथ अगर एक और एक बॉडी मूव करने लगे, फॉर दिस बॉडी ये ऑब्जर्वर के लिए ये बॉडी रेस्ट पे होगी हमेशा, ठीक है। और उसके ऊपर हमेशा एक फोर्स लग रहा होगा जो कि आउटवर्ड होगा, सेम मैग्नीट्यूड का होगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, मीन्स mv²/r। इसी को हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दिस इज अ नॉन रियल टाइप ऑफ फोर्स, ठीक है। सूडो फोर्स लिखने का तरीका क्या होता है? सूडो फोर्स लिखने का तरीका ये होता है कि उस बॉडी का मास ले लो, ठीक है, और उस बॉडी का एक्सेलरेशन जिससे ऑब्जर्वर एक्सेलरेट हो रहा है उसको उस बॉडी के मास के साथ अटैच कर दो इन अ अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। यही तरीका होता है सूडो फोर्स लिखने का। तो यहाँ पे वो बॉडी का लेट से मास m था, ठीक है। एक्सेलरेशन किस एक्सेलरेशन से वो एक्सेलरेट हो रहा था? v²/r से एक्सेलरेट हो रहा था, वो मैंने अटैच कर दिया मास के साथ विद अ नेगेटिव साइन, यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव हो रहा है। एक्सेलरेशन एक्चुअली इस डायरेक्शन में होता है, सेंट्रीफ्यूगल के लिए इस डायरेक्शन में होगा बिकॉज इट्स एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। होप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। वो इतना ही कंसेप्ट है सेंट्रीफ्यूगल का, इट्स अ सूडो टाइप ऑफ फोर्स, ऑलराइट। जस्ट यहाँ पे फिर हम फोर्स बैलेंस कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है वो mv²/r ही आएगी, जस्ट इन अपोजिट सेंस। क्लियर? ऑलराइट, ठीक है। नाउ हम थोड़े से प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। अभी तक हमने जो भी पढ़ा इसके रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, देन वी विल कंक्लूड द काइनेमेटिक्स पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अपने से? अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM, ये आपकी टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है। 90 RPM से फैन घूम रहा है, देन इट इज स्विच ऑफ, इट स्टॉप एट आफ्टर 21 रेवोल्यूशन, ठीक है। वो क्या हुआ, एक फैन मूव हो रहा था इनिशियली 90 RPM से, ठीक है। उसके बाद उसको स्विच ऑफ किया गया तो स्लो डिसेलरेट होते उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। सो आई कैन राइट ओमेगा नॉट इक्वल्स टू, मुझे क्या दे दिया है? 90 RPM दिया है, मीन्स मुझे रेवोल्यूशन पर मिनट दिया है यहाँ पे, मीन्स दिस इज द फ्रीक्वेंसी, रेवोल्यूशन पर मिनट, 90 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि मुझे n इज गिवन एज 90 RPM, ठीक है। मैं इसको RPS में भी कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल क्या करता है, अभी 1 मिनट में 90 बार घूम रहा था इनिशियली, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी इसका फॉर्मूला होता है 2π/t,
या आई कैन राइट 2 पाई एन, ठीक है, 1/d इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी यानी कि n, सो आई कैन राइट इट एज 2 पाई इंटू n। यहाँ पे इसको RPS में कन्वर्ट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 90/60, दैट इज 1.5 RPS। तो यहाँ पे आएगा 1.5, इट कम्स आउट टू बी 3 पाई, ठीक है। तो ये मिल गया मुझे इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी जिससे वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। फिर उसके बाद है उसको जैसे स्विच ऑफ किया उसने 21 रेवोल्यूशन लिए, यानी कि मुझे क्या पता था n इक्वल्स टू 21, यानी कि 21 इंटू 2 पाई करूँगा जब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। जैसे हमने देखा था थीटा का फॉर्मूला इज 2 पाई n, तो थीटा कम्स आउट टू बी 2 पाई n, दैट इज 42 पाई। मुझसे क्या बोल रहा है वो क्वेश्चन में, आई एम सपोज टू फाइंड कैलकुलेट द टाइम टेकन बाय टू स्टॉप, उसको स्टॉप होने में कितना टाइम लगा, ठीक है। ऐसे कभी भी प्रॉब्लम आएंगे ना कि टाइम कितना लगा, वेलोसिटी इतनी थी इनिशियली, फाइनली वो स्टॉप हो गया या फाइनली उसकी वेलोसिटी बढ़ गई घट गई, तो वी विल गो फॉर यूजिंग काइनेमेटिकल इक्वेशन जो हमने एंगुलर वेरिएबल्स के लिए डिफाइन किए थे, ठीक है। मुझे टी कैलकुलेट करना है कि कितना टाइम लगा होगा उसे रुकने में, ठीक है। ये फर्स्ट प्रॉब्लम है अपना। तो मेरे पास ओमेगा है, ओमेगा फाइनल भी है मेरे पास, मीन्स फाइनली वो वेलोसिटी जीरो ही होगी। फैन स्टार्टिंग में घुमा फिर बंद होते होते जीरो हो गया, ठीक है। तो व्हाट आई कैन राइट इज ओमेगा फाइनल इक्वल्स टू ओमेगा आई इनिशियल या ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से टी का वैल्यू क्या आएगा मेरे पास, टी का वैल्यू कम्स आउट टू बी ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा नॉट बाय अल्फा, ठीक है। अल्फा अभी भी नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू इज के पहले अल्फा निकालने की कोशिश करते हैं। एक और एक इक्वेशन यूज कर लेते हैं स्पीड का, ओमेगा फाइनल स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट का स्क्वायर प्लस 2 अल्फा टीटा, ठीक है। क्योंकि मेरे पास टीटा है तो यहाँ से मैं आई कैन फाइंड अल्फा, ठीक है। तो अल्फा क्या आएगा, ओमेगा फाइनल तो 0 है, तो 0 माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 टीटा, ऑलराइट। अब यहाँ पे एक चीज़ अपने को समझनी है कि ये चीज़ हो गई, अल्फा मिल गया मुझे, आई कैन सब्स्टिट्यूट अल्फा यार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे अल्फा सब्स्टिट्यूट करता हूँ तो व्हाट आई विल गेट इज ओमेगा फाइनल इज 0, 0 माइनस 3 पाई डिवाइड बाय अल्फा, अल्फा की वैल्यू ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस 3 पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 2 टीटा, 2 टीटा ऊपर जाएगा, ऐसा हो जाएगा ये, ऑलराइट। इसके बाद यहाँ से माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 3 पाई इंटू 2 टीटा डिवाइड बाय 9 पाई स्क्वायर, 1 पाई भी कैंसिल, टीटा कितना है अपना 42 पाई, तो आई कैन सब्स्टिट्यूट 3 इंटू 2 इंटू 42 पाई डिवाइड बाय 9 पाई, पाई अगेन गेट कैंसल्ड आउट। तो यहाँ पे क्या बच रहा है, इट कम्स आउट टू बी 6 इंटू 42 बाय 9, ठीक है। तो उसको कैंसिल आउट कर सकते हैं अपन, 3 3 जा 9, 3 14 जा, 3 1 जा, 3 2 जा, तो आंसर कम्स आउट टू बी 28 सेकेंड। तो 28 सेकेंड बाद ये फैन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ऑलराइट। तो ये फंडा था अपना फर्स्ट प्रॉब्लम, ठीक। नाउ प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ये बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम था अपना, जो फर्स्ट पार्ट पे डिपेंड किया था, जो अपने फर्स्ट पढ़ लिए थे काइनेमेटिक इक्वेशंस के बारे में। अब नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम, ठीक है। A particle moves in a circle of radius 20 cm with a linear speed, ये find angular velocity, ये तो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, a particle travels in a circle of radius 20 cm, सेकेंड प्रॉब्लम रेडियस दिया है 20 सेंटीमीटर, एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस, वो स्पीड क्या हो रही है, बढ़ते जा रही है। इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू वी फाइनल 6 मीटर पर सेकेंड, ठीक।
कितना टाइम लिया उसने, 2 सेकेंड में स्पीड इतनी बढ़ गई। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन, आई एम सपोज टू फाइंड अल्फा। ठीक है, क्वेश्चन एक बार वापस से रीड करता हूँ। अ पार्टिकल ट्रेवल्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर एट अ स्पीड दैट यूनिफॉर्मली इंक्रीजेस। ठीक है, इफ द स्पीड चेंजेस फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। आई एम सपोज टू फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज अल्फा। ठीक है, अब मुझे स्पीड चेंज होती हुई दी है, तो व्हाट आई कैन राइट इज a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी। ठीक है, क्योंकि मुझसे लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में बात कर रहे हैं, तो आई एम सपोज टू टेक इट इज इन लीनियर वेरिएबल। तो a इक्वल्स टू डी वी बाई डी टी, दैट इज नथिंग बट v फाइनल माइनस v इनिशियल बाय टाइम टेकन, दैट इज 6 माइनस 1 बाई 2। हाँ, दैट कम्स आउट टू बी 0.5 सेकेंड। ठीक है, a मिल गया मुझे। a क्या था, dv बाई डी टी क्या था, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। ऑलराइट, मुझसे अल्फा पूछा है और मुझे क्या पता है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज नथिंग बट r अल्फा। तो अल्फा इज नथिंग बट at बाय r। at कितना मिला, 0.5 डिवाइड बाय r। r कितना है, 20 सेंटीमीटर ना। 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2, तो कितना आ जाएगा 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ऑलराइट, 2.5 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब पार्टिकल, ये थोड़ा अच्छा प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन एट। देखो यहाँ पे अब अभी तक जो देखा था हमने वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के टर्म्स में था। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे वी कैन यूज दैट काइनेमेटिकल इक्वेशन, जो भी 3 अपने इक्वेशन से वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जब वो पार्टिकल कांस्टेंट ना हो तो हम क्या करेंगे, तो वी विल गो फॉर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो यहाँ पे वही टाइप का प्रॉब्लम है। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, रेडियस 20 सेंटीमीटर दिया है मुझे, और लीनियर स्पीड जो है उसकी, लेट से वो ऐसा घूम रहा है, लीनियर स्पीड वेरी कर रही है ऐसे 2t से, where t इज इन सेकेंड, v इज इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ढूंढने बोला है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, रेडियल एक्सेलरेशन की बात किया है मुझसे और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की बात कर रहा है। v इक्वल्स टू 2t पे, 2t, और मुझसे बोल रहा है कि फाइंड एट t इक्वल्स टू, ये दोनों फाइंड करने मुझे एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड। सो एक टाइम और मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, इट्स लीनियर स्पीड इज गिवन बाय v इक्वल्स टू 2t, where t इज इन सेकेंड एंड v इज इन मीटर पर सेकेंड। फाइंड द रेडियल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड पे हमें ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ऑलराइट, तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली मैं ar की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करने जाऊँ तो इट्स नथिंग बट v स्क्वायर बाय r। v स्क्वायर क्या दिया मुझे, 2t, यानी कि 2t स्क्वायर बाय r। 2t, t मीन्स मुझे 3 सेकेंड पे बोला था, मीन्स 6 का स्क्वायर यानी कि 36 बाय r। r इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर मीन्स 0.2, 20 सेंटीमीटर इज 0.2। तो दिस कम्स आउट टू बी 360 बाई 2 यानी 180 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 180 रेडियन पर, सॉरी, यूनिट का आपको ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड होगा, क्योंकि आई एम कैलकुलेटिंग लीनियर एक्सेलरेशन नॉट एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर होता तो रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर होता। तो स्टूडेंट कभी कभी जल्दबाजी में जैसे गलती हो गई, हो सकती है। ठीक है, अब 80 फाइंड करना है। 80 के लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, 80 इज नथिंग बट डी वी बाई डी टी। मैं ये चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, डी वी बाई डी टी। ठीक है, तो v क्या है मेरा, 2t है, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ऑलराइट, तो ये ऐसे ही आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होप समझ में आया होगा ये चीज़ भी। डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई डी टी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज dv बाई डी टी। v मेरा 2t है, 2 बाहर आ गया, d1, तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
इसी चीज़ों में मैनिपुलेशन हो सकता है, इसके अलावा नहीं। फर्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अभी। एच.सी. वर्मा के प्रॉब्लम्स भी हैं थोड़े, वी ऑल नो कि ये सारे बहुत अच्छे प्रॉब्लम्स होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, तो इसको भी थोड़ा बहुत सॉल्व करेंगे अपन। व्हेन अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कल विद यूनिफॉर्म स्पीड, तो क्या क्या चीज़ें हमें 4 ऑप्शन दिए। इट वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर बोथ कांस्टेंट। क्या बोल रहे हैं, जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से पार्टिकल मूव करता है सर्कल में, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। ऑप्शन में लिख देता हूँ यहाँ पे, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट एक्सेलरेशन चेंजेस। सी बोल रहा है एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। डी बोल रहा है बोथ चेंजेस। कब, जब यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा हो पार्टिकल सर्कल में। तो वी ऑल नो जब कभी भी वो यूनिफॉर्म स्पीड से चले तो उसमें एक्सेलरेशन तो आएगा ही आएगा। कोई भी स्पीड से चले, यूनिफॉर्म से चले, नॉन यूनिफॉर्म से चले, उसमें ए आर तो आना ही है। ए आर अगर आ रहा है मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कंटिन्यूसली चेंज होगा, हर पॉइंट पे चेंज होगा, ठीक है ना। सर्कल अगर बना के देखे, ए आर आ रहा है, वो पहले इस डायरेक्शन में आएगा, जब पार्टिकल यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में, जब यहाँ आएगा इस डायरेक्शन में, एंड सो ऑन, ठीक है। तो मीन्स इसका एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है। तो एक चीज़ तो पक्की है कि एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो एक्सेलरेशन इज नॉट कॉन्स्टेंट। जहाँ जहाँ एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है वो उड़ा सकते हैं हम, ये 2 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब यहाँ पे वी हैव टू लाइक जज के क्या कांस्टेंट, क्यों, मीन्स क्या है एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या है, वेदर इट इज़ बी और सी, बी और डी, ठीक है। अब बात करते हैं, एक्सेलरेशन तो चेंज हो रहा है, वन थिंग इज श्योर। वेलोसिटी के ऊपर देखते हैं, वेलोसिटी क्या बोला उसने, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव हो रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म स्पीड से अगर वो मूव हो रहा है तो जाहिर सी बात है हर पॉइंट पे, ये पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट की बात करूँ, ये पॉइंट की या ये पॉइंट की, इट्स वेलोसिटी इज स्टिल गेटिंग चेंज। भले उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन उसकी बदल रही है। वेलोसिटी के पास 2 चीज़ कौन सी होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इफ वन ऑफ देम चेंजेस वेलोसिटी चेंजेस। तो यहाँ पे अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है हर बार वेलोसिटी की, तो इसका मेन मतलब ये है कि वेलोसिटी भी चेंज हो रही होगी, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी चेंज नहीं होता देन आई कैन से कि वेलोसिटी इज कांस्टेंट, बट इन दिस केस डी इज द करेक्ट आंसर, बोथ चेंज, वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है। होप ये समझ में आया होगा अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं इसी में। 2 कार है, मास m1 एंड m2 मूव इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r1 एंड r2। लेट्स से ये r1 है, कार m1 मूव हो रही है, r2 है, कार m2 मूव हो रही है मास की, ठीक है। 2 केसेस दिए अपने को। इफ दे कंप्लीट द सर्कल इन इक्वल टाइम द रेशियो ऑफ देयर एंगुलर स्पीड, लेट्स से इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा है, इसकी ओमेगा 2 है, इन दोनों का रेशियो मुझसे पूछा है कि रेशियो क्या आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूँ, इसका यहाँ से लीनियर स्पीड निकालता हूँ। लीनियर स्पीड कम्स आउट टू बी v1 इक्वल्स टू 2 पाई r1 बाई टी, लेट्स से t, ठीक है। ये केस में होगा v2 इक्वल्स टू 2 पाई r2 बाई टी। मुझसे बोल रहा है कि टाइम सेम है, ठीक है, टाइम सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ, इक्वेशन ये एंड ये, तो ये हो जाएगा v1 बाई v2 इक्वल्स टू, कम्स आउट टू बी r1 बाई r2 आ जाएगा। जब मैं 1 और 2 को डिवाइड करता हूँ, 1 डिवाइड बाई 2, लेट्स से इक्वेशन 1 था और ये 2 था। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं हो, ये चीज़ आ गई। बट आई एम सपोज टू फाइंड व्हाट, ओमेगा। मैं v1 को क्या लिख सकता हूँ, r1 ओमेगा 1, इसको मैं लिख सकता हूँ r2 ओमेगा 2, r1, ये सब कैंसिल हो जाएगा, आंसर कम्स आउट टू बी, देन आई कैन राइट व्हाट, ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 इक्वल्स टू 1। तो इसमें ऑप्शंस दिए थे मुझे, ऑप्शन था ए m1 बाय m2, m1 अपॉन m2, बी ऑप्शन था r1 बाय r2,
सी ऑप्शन था M1R1/M2R2 और डी ऑप्शन था 1। तो करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, होप ये अपने को समझ में आया ये सॉल्यूशन। वेलोसिटी 2πr/t, सिंपल था ये। मोस्टली यही टाइप के प्रॉब्लम्स में मैनिपुलेट होके दे विल आस्क। इससे अपार्ट मेरे हिसाब से कुछ नहीं पूछ सकते लोग। एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा प्रॉब्लम है, इसको देखते हैं। HC वर्मा का ही है, ऐसा कुछ है। ठीक है, यहाँ पे A पार्टिकल है, यहाँ पे B पार्टिकल है, और क्या बोल रहा है, अ कार मूव्स एट अ कांस्टेंट स्पीड। ये एक ऐसे रोड पे एक कार कांस्टेंट स्पीड से जा रही है। द नॉर्मल फोर्स बाय द रोड ऑन द कार इज NA एंड NB। नॉर्मल रिएक्शन रोड से मिल रहा है, इसको NA मिल रहा है और इसको यहाँ पे NB मिल रहा है। ऑलराइट, ठीक है। अब मुझसे अब क्या पूछ रहा है, NA इक्वल्स टू NB। NA इक्वल्स टू NB। सेकेंड पूछ रहा है NA इज ग्रेटर देन NB। थर्ड पूछ रहा है NA इज लेस देन NB। और D इनसफिशिएंट डेटा, ऐसा करके एक ऑप्शन दिया है, सफिशिएंट डेटा। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम अच्छा है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ध्यान से देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ये है कि भाई अगर नॉर्मल रिएक्शन क्या बेसिस पे लगेगा हमें। नॉर्मल रिएक्शन अगर लेट्स से B यहाँ पे जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ऑलराइट, जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा नॉर्मल रिएक्शन देगा। यहाँ पे अगर मास ज़्यादा हुआ तो ये नॉर्मल रिएक्शन ज़्यादा देगा, यहाँ पे अगर हुआ तो ये ज़्यादा देगा, और अगर दोनों पे सेम हुआ तो दोनों सेम होंगे। यानी कि वेदर ये ऑप्शंस में से अपने को सेलेक्ट करना है कि करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, तो बेसिक समझते हैं इसके बारे में। हमने परपेंडिकुलर और हॉरिजॉन्टल फोर्स के बारे में मैंने बताया कि अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो इट विल जस्ट चेंज द मैग्नीट्यूड, और अगर परपेंडिकुलर कोई फोर्स लग रहा है तो इट विल चेंज द डायरेक्शन। ठीक, तो ये केस में क्या होगा, वी ऑल नो के F बराबर ma, तो A बराबर F/m। ठीक है, तो M और A का इन्वर्स रिलेशन है। अगर M ज़्यादा है तो एक्सेलरेशन कम है, एक्सेलरेशन कम है मीन्स फोर्स भी कम है। ठीक है, और अगर M कम है तो एक्सेलरेशन ज़्यादा, एक्सेलरेशन ज़्यादा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो सपोज करते हैं कि मास, अपना केस मास और एक्सेलरेशन में जो रिलेशन आ रहा है वो क्या रिलेशन आ रहा है। ठीक है, मुझे मास के बारे में कुछ बताया नहीं है कि मास किसका ज़्यादा है या किसका कम है। मुझे जस्ट ये पता है अ कार मूव्स कांस्टेंट स्पीड, द नॉर्मल फोर्स ऑन द रोड। ठीक है, दो तो मास तो सेम ही, एक ही कार जा रही है, एक ही कार है दोनों रोड पे, बस जो डिफरेंस है वो एक बार इधर है एक बार यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये सरफेस जो है ना, इसका एक थियरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि लेट्स से एक बॉडी है, ठीक, उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, ये कंडीशन से हम इसको डिराइव करने की कोशिश करेंगे। अगर उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर फोर्स हॉरिजॉन्टल के अलोंग लग रहा है, हॉरिजॉन्टल भी एक फोर्स है, परपेंडिकुलर भी एक फोर्स है। ठीक है, तो क्या होगा, ये बॉडी अपना डायरेक्शन चेंज करेगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, लेट्स से बॉडी का नाम है M1, ये बॉडी है M1। ठीक, एंड वी नो F इक्वल्स टू F/m इक्वल्स टू A। ठीक है, सिमिलरली एक और एक बॉडी है, एक और बॉडी है जिसका मास है M2, जिसका मास है M2। ठीक है, उसको यहाँ ले लेते हैं। एक और एक बॉडी है सेम M2 मास की है, और यहाँ पे मैं कंसिडर कर लेता हूँ कि M1 इज़ ग्रेटर देन M2, M1 इज़ ग्रेटर देन M2। तो ये रिलेशन के हिसाब से, M1 अगर ग्रेटर है तो A1 कम होगा, यानी कि A2 शुड बी ग्रेटर देन A1।
बात समझ में आ रही है? मीन्स आई कैन से F2 शुड बी ग्रेटर देन F1, यानी कि जो फोर्स F2 पे लगेगा वो ज़्यादा लगेगा कंपेयर टू व्हाट F1। मेरी बात समझ में आई? इसको चाहिए तो हम अलग अलग बना के देखते हैं, ठीक है। M1 है, लेट्स से फोर्स F1 लग रहा था तो ये पाथ में गया, ठीक। दूसरा केस जो था, अपनी बॉडी M2 थी, फोर्स F2 लग रही होगी। अब इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा है F2 फोर्स क्या है, ग्रेटर है देन F1, ठीक है। तो ये फोर्स ग्रेटर है मीन्स ये थोड़ा कम टिल्ट होगा कंपेयर टू दिस वन। इसके ऊपर कम फोर्स लग रहा है, इसके ऊपर ज़्यादा फोर्स लग रहा है मीन्स ये जल्दी से बेंड होना शुरू हो जाएगा, जल्दी से कर्व पाथ ले लेगा। ये थोड़ा स्लोली कर्व पाथ लेगा। समझ में आ रहा है? क्यों? क्योंकि इसका जो F है, F फ्रॉम दिस इक्वेशन F1 इज लेस देन F2। बात समझ में आ रही है? तो ये हुआ क्या, मास M1 ग्रेटर था लेकिन फोर्स F2 पे ज़्यादा आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे भी समवॉट वही सिचुएशन है। यहाँ का जो कर्व है ये समवॉट इसको इम्प्लाई कर रहा है और यहाँ का जो ये वाला कर्व है वो इसको इम्प्लाई कर रहा है। बात समझ में आ रही है? ठीक। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि F2 मास जब M1 ग्रेटर था तो ये थोड़ा लीनियर, ऐसा मास जब ग्रेटर था तो फोर्स कम था, ठीक। कम था फोर्स मीन्स उसने ऐसा लगाया, तो यहाँ पे जो मास होगा वो ग्रेटर होना चाहिए जब यहाँ पे फोर्स कम लगाए, ठीक है ना। इसका मास ग्रेटर होगा जब यहाँ पे फोर्स कम आया होगा। बात समझ में आई? यहाँ पे मास कम होगा जब भी फोर्स ज़्यादा आया और ये ज़्यादा बेंड हुआ है। होप ये समझ में आ रहा है अपने को, विजुअलाइज कर पा रहे हो क्या? ठीक है, ये रिलेशन था अपने पास। दो केस थे, एक M1 मास था, एक M2 मास था। इस पे F1 फोर्स लग रहा था। अगर मैंने कंसिडर किया कि M1 ग्रेटर है M2 से, तो एक्सेलरेशन उल्टा हो जाएगा, एक्सेलरेशन A2 का ज़्यादा होगा और A1 का कम होगा। सिमिलरली फोर्स भी F2 का ज़्यादा होगा, F1 का कम होगा। ऑलराइट, तो ये केस में जब ऐसा हुआ, ठीक है, तो M1 का मास ज़्यादा था लेकिन F1 फोर्स कम था, ठीक है। दैट्स वाई वो जो कर्व था वो थोड़ा कम बेंड हुआ और वो ये सिनेरियो फेस कर रहा है। मीन्स यहाँ पे इसका मास ज़्यादा होना चाहिए था। मास अगर इसका ज़्यादा है तो दैट मीन्स इसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है वो भी ज़्यादा मिल रहा होगा, ठीक है। तो फ्रॉम दिस आई कैन कंक्लूड NB शुड बी ग्रेटर देन NA। समझ में आ रहा है ये क्यों कंक्लूड किया मैंने? NB इज ग्रेटर देन NA। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो ये है। वापस से एक बार एक्सप्लेन करते हैं। M1 का मास ज़्यादा था तो ये रिलेशन से एक्सेलरेशन कम होना चाहिए उसका। एक्सेलरेशन कम हो गया इसका। अगर एक्सेलरेशन कम है तो फोर्स भी कम है, ठीक है। अगर फोर्स कम है तो हल्का सा फोर्स, मतलब कम फोर्स लग रहा है तो थोड़ा हल्का बैंड होकर सर्कुलर पाथ में जाएगा। फोर्स अगर ज़्यादा है तो वो इंस्टेंटली बैंड होना शुरू हो जाएगा, फटाफट बैंड होना शुरू हो जाएगा। फोर्स ज़्यादा है तब, ठीक है ना। फोर्स ज़्यादा कब आ रहा है? जब मास कम है, तो यहाँ पे फोर्स ज़्यादा आ रहा है जब मास कम है। इसका मास कम है मीन्स इसका नॉर्मल रिएक्शन भी कम होना चाहिए। तो दिस आंसर इज करेक्ट। होप ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। इट्स वन ऑफ द गुड प्रॉब्लम आई कैन से इन HC वर्मा, ठीक है। तो होपफुली you must have enjoyed the lecture, or if you have any doubt, do comment in the comment box. I will try to resolve your query, or please do subscribe my channel and share a mouth of word so that maximum student will be benefited. Thank you.